Today is our day number 1 and we are learning Python. So the first question that should come in your mind is, what is Python? Python क्या है? Can anybody tell me what is Python? What do you know about Python? Python is the name of a snake. Python is a high-level object-oriented scripting language. Okay, ये सच में हाई लेवल हो गया. Let's not get into that. कि हाई लेवल Python कुछ नहीं है. Python is just a simple language. Python क्या है? Python is just a simple language. ठीक है. और language होता क्या? What exactly is the language? Let's guess from the basic. What is a language? लैंग्वेज एक मीडियम होता है दैट इज यूज टू कम्युनिकेट या एक दूसरे की बात को जानने और समझने में हेल्प करता है. राइट? यस और नो? कम ऑन टेल मी. यस और नो? राइट? Yes, correct. Correct. If you are from Bengal, then how will you speak? You'll speak in Bengali. The people from Bengal will understand Bengali, right? People from Tamil Nadu, they'll understand Tamil. And people from Kerala or from whichever place they are, they understand their own native languages, right? Correct. तो ये होता क्या है कि the person who is speaking, उसको वो language आना चाहिए, or the person who is listening, जिनको समझ के वो काम करना है. Suppose if I just want, suppose I am just going to Kolkata, I am asking Prasanjit, since he's from Kolkata, so we'll speak about Rasgulla. ठीक है? So if I just need, so I'll just say Prasanjit, मुझे रसगुल्ला चाहिए. If I'm just asking him in Hindi, and if it doesn't understand anything, उसको समझ में नहीं आता ये हिंदी, तो what he'll do? वो कुछ करेगा क्या? बताओ. Will he do anything? No, right? If he's not understanding what I'm asking, he will not do anything. Correct. So Python is basically one language that helps us to communicate with the system. ठीक है? तो ये communicate करता है. Have you seen recently there was actually meme, एक meme आया था. ठीक है? Recently if you have seen Mr. Amit Shah, ठीक है, the Home Minister. ठीक है? तो he was giving a speech and there was a translator in between. And he was saying something and the translator was telling something else. So he said कि भाई साहब ये मत बोलो, मैं जो कह रहा हूँ बस वही बोलो. Did anybody see that? किसी ने देखा है वो? Okay. अगर नहीं भी है तो कोई नहीं है. So you have seen our prime minister going to different countries, right? Different states. Have you seen or not? Yes. Correct. Okay. So you have seen. So do you think कि will he be able to interact with the other person in the same way? नहीं कर पाएंगे, right? So he needs a medium. He needs a interpreter who can actually understand his things and then pass on the things to the crowd. Correct? Yes or no? This is what happens. Mediator होते हैं एक बीच में. तो बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है. एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. ये बिल्कुल सेम चीज होती है जो आपके बात को वहां तक पहुंचाना है. ठीक है? तो आ जाओ. तो पाइथन क्या है? पाइथन इज जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज. ठीक है? अब ये क्या होता है? पाइथन में जितनी भी चीजें होती है ना, दोज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट. पाइथन में जितनी भी चीजें होती है, व्हाट आर दे? दे आर ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आर दे? दे आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? तो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली मेकिंग पाइथन एज आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दैट इज व्हाई व्हेन शारिक टोल्ड Python is an object-oriented programming language and it is high level. ठीक है? High level मतलब क्या है? कि whatever we are writing we can understand. ठीक है? Whatever the computer needs to understand, that is being actually translated and made understood to the system. ठीक है? तो अब आते हैं यहाँ पे. अब समझने की कोशिश करते हैं कि what exactly do we mean by Python is simple and easy to learn. तो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे you'll understand कि कितना easy है and how we should proceed. So coming to the very first point here, if you see the very first point here, it is easy to learn and use, right? How many of actually have had an experience with Python? Python इससे पहले किसने काम किया है? किसी ने किया है काम? No one. Okay, no problem. So हम लोग काम करेंगे इस पे. So first of all, just 1 or 2 modules. Okay, great. तो चलो हम लोग उस पे और बिल्ड करेंगे एंड विल हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑन इट. ठीक है? तो इजी टू लर्न क्या है? क्योंकि इसमें पता है एवरीथिंग वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है? तो ये क्या होगा? इट इज सिंपल गोइंग टू बी, मतलब ऐसा है कि एकदम अंडरस्टैंडेबल. यू डोंट हैव टू एक्चुअली थिंक टू मच अबाउट थिंग्स. बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से चीज़ हो जाती है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है? एंड देखो दूसरा पॉइंट लेगा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. एक्सप्रेसिव मतलब समथिंग दैट इज अपीलिंग टू द ऑडियंस. जो लिख रहा है ना, जो यूजर है,
उसको सब चीज़ समझ में आने लगेंगी, ठीक है। उसको बस एक लाइन बोलो, वो उस लाइन का मीनिंग समझ जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। द पॉइंट नंबर 3, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि होता क्या है? अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी एक आपको कहानी बता रहा था, ठीक है। एंड व्हाट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट? इट वाज द स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड गिविंग स्पीच, राइट? यस और नो? यस निशी, हैव एनीथिंग? हाँ, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आई थिंक जो पूरे मतलब लाइंस जैसे हम लोग लिखते हैं तो लास्ट में वो बताता है कि कितना एरर्स है, बट पाइथन में हर एक लाइन पे वो करेक्ट करते जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देखो होता क्या है, व्हेन मान लो कि आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज गिविंग अ स्पीच, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है ना, देखो वो क्या है कि ऐसा नहीं कि वो पूरा कंप्लीट स्पीच बोल दिए एंड उसके बाद फिर ट्रांसलेटर इज ट्रांसलेटिंग और उसके बाद फिर वो ऑडियंस सुन रहे हैं। ऐसा होता है क्या? देखे हो कभी? नहीं ना। तो होता क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है या हुएवर इज गिविंग द स्पीच, ठीक है, तो जो पर्सन होता है वो एक लाइन बोलता है एंड देन ही लेट्स द इंटरप्रेटर, जो इंसान होता है बीच में, ठीक है, जो मीडिएटर होता है, जो उनकी बात को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो एक लाइन सुना, एक लाइन को उसने क्या किया, उसने ट्रांसलेट किया, करेक्ट? यस और नो? ऐसा ही होता है ना? हैव यू Yes. पीपल एक्चुअली सीन और नॉट? Yes. यस Yes. यस ओके, तो चलो Yes. यहाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा ही होता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर विल टेक वन लाइन एट अ टाइम, एक लाइन को एक टाइम में लेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट, ठीक है। और इसी के साथ एक और होता है जो बिल्कुल सेम काम करता है, बिल्कुल कन्वर्ट करता है, ठीक है, और कन्वर्ट करता है और उसको लेकिन करने का तरीका अलग होता है। वो क्या करता है? ही विल लिसन टू द कंप्लीट स्पीच एंड देन ही विल कन्वर्ट, ठीक है। तो दो तरह का होता है। तो जो ये पूरा सुनने के बाद जो कन्वर्ट करता है ना, one that is listening to everything and then converting, that is actually called compiler। उसको क्या बोलते हैं? compiler, ठीक है। and the one that is listening line by line, that is called interpreter। understood the basic difference between the two? Yes. okay okay so come on, so ये हम लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग बोलते हैं पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट इफ एन इंटरव्यूअर इज आस्किंग, बिकॉज ये इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है, ठीक है। व्हेन आई से कि इंटरव्यूअर का फेवरेट, इट मीन्स कि वो पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा जाता है, इज पाइथन एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्यों? आई टेल यू क्यों। तो लेट्स कम टू आवर पेज एंड अंडरस्टैंड। देखो हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी राइट अ प्रोग्राम, हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग किस में लिखते हैं? हाउ डू वी राइट इट? कैन समबडी टेल मी हाउ डू वी राइट इट? क्या हमारे, गो अहेड प्लीज। We write any program in the IDE as a source code. ओके, यू राइट एज अ सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड पाइथन में क्या होता है? कौन सा फाइल बनाते हो, देखे हो? हैव यू पीपल सीन व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? .py It's डॉट .py. पी, करेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जो सोर्स कोड लिखते हैं, क्या वो कंप्यूटर समझ सकता है? कैन आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड दैट? No. नो। सो व्हाट इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कैसे समझेगा? Hmm? तो वी नीड टू मेक इट रेडी फॉर द मशीन टू अंडरस्टैंड, राइट? जिसको क्या Correct. बोलते हैं? मशीन लेवल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Machine करेक्ट, level. मशीन लेवल कोड बोलते हैं। और ये मशीन लेवल कोड जो है हमारा, वो क्या करता है? वो हमें रन होके आउटपुट देता है, करेक्ट? यस और नो? चल, Yes. तो वी विल अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो आ जाता है सबसे पहले, वी हैव अ सोर्स कोड, राइट? हम लोग पास क्या है, हम लोग जो अभी कोड लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। क्या होता है? और वो किस फाइल में होता है? डॉट पी वाई फाइल में। किस फाइल में होता है? डॉट पी .py. वाई फाइल, ठीक है। PY इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स कोड। सोर्स कोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हेन वी से कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इफ यू आर गोइंग टू से यस, ठीक है, और या फिर इफ यू आर गोइंग टू से नो,
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप दोनों बोलोगे ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा इंटरव्यूअर, ठीक है। सो हाउ यू हैव टू आंसर इज यू आर नॉट गोइंग टू आंसर इन अ सिंगल वर्ड, आप सिंगल वर्ड पे नहीं करोगे, ठीक है। तो होता क्या है, फर्स्ट दिस सोर्स कोड, ये जो सोर्स कोड है हमारा, ठीक है, फर्स्ट दिस इज कंपाइल्ड, दिस इज फर्स्ट कंपाइल्ड, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंपाइल्ड। और कंपाइल होने के बाद ये क्या होता है, ये हमको देता है बाइट कोड। क्या देता है, व्हाट डज इट गिव, दिस गिव अस बाइट कोड, ठीक है, दिस गिव अस बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड हम लोग को मिलता है, ठीक है, ये जो बाइट कोड हम लोग को मिलता है, इसका जो फाइल का होता है नाम, ये होता है PYC। क्या नाम होता है, PYC। तो ये हो गया हमारा बाइट कोड का, ठीक है। तो सोर्स कोड हो गया, ये PY फाइल होता है। ये पहले क्या होता है, ये पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद हम लोग क्या मिलता है, बाइट कोड। लेकिन ये जो बाइट कोड होता है, ये जो बाइट कोड होता है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है, ठीक है, ये मशीन तुरंत नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या है, अब यहां से क्या होता है, यहां से हम लोग का अब सिस्टम में चेंज होता है। सिस्टम में क्या होता है, अब यहाँ पे एक हमारा एक सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। पाइथन में एक वर्चुअल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डू यू नो व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन, डू यू नो व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन, क्या होता है वर्चुअल मशीन? हाँ, अच्छा, वर्चुअल मतलब क्या होता है ये बताओ, मशीन की तो बात बाद में करेंगे, मशीन सब जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल? that does not exist physically. That does not exist physically. जैसे like right now we are meeting, right? हम लोग सब एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Yes. कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट फिजिकल, राइट? फिजिकल होने से क्या होता है कि हम लोग सब आस पास खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और उसके बाद फिर कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। Correct. तो वो हो जाता फिजिकल। अब मत बोलना कि वीडियो कैमरा ऑन कर लो तो देख लेंगे, ऐसा नहीं। फिजिकल मतलब एक दूसरे के प्रेजेंस को फील करना, ठीक है। तो वो, तो वर्चुअल का क्या होता है, वी आर राइट नाउ मीटिंग वर्चुअली, राइट? दिस इज अ वर्चुअल मीटिंग, करेक्ट? यस और नो? Correct. चलो, तो ये हमारा वर्चुअल मीटिंग हो गया। तो वर्चुअल मीटिंग क्या होता है, जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो ये मशीन का क्या फिजिकल प्रेजेंस है, बताओ? No. नो, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी मशीन, एक है यहाँ पे, ठीक है, वर्चुअल मशीन। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, क्या बोलते हैं? JIT इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली ये जो बाइट कोड आता है ना, ये जो बाइट कोड आता है, ये बाइट कोड को अब यहाँ पे हमारा इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे क्या करता है बताओ, यहाँ पे इंटरप्रेट करता है। और ये इंटरप्रेट करके अब ये हम लोग को आउटपुट देता है। नाउ दिस विल गिव अस द आउटपुट। सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली Python works? Did you people understand? So what happens is the source code is first compiled into bytecode. ठीक है, the source code is first compiled into bytecode, and this bytecode is interpreted by the JIT, that is just in time compiler in the virtual machine, to produce the output. Did you people understand? So is this JIT a compiler or an interpreter? This is an interpreter. JIT is an interpreter in case of Python. Okay. ठीक है, we have many language which are interpreted language. One is Python, the other one is PHP. Okay, so these are actually your interpreted language. These are not compiled language. Understood? ठीक है. So what happens is, where actually the interviewer confuses you is this point. You are saying here it is getting compiled, but you are saying Python is an interpreted language. Correct? Yes or no? Correct. Correct. So this is the question where the interviewer is going to confuse you. Okay, so just remember, it is only converting this into a byte code. This is only converting it into a byte code that is actually not ready to run on the system. वो system में run होने के लिए ready नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर कौन करता है, फिर इसको रीड करके कन्वर्ट कौन करता है, JIT. Who converts it? JIT. ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या बोलते हैं JIT का फुल फॉर्म? जस्ट इन टाइम कंपाइल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ सोर्स कोड लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, सीधा हम लोग रन बटन दबाते हैं। हम लोग ये पीछे का कुछ नहीं दिखता है, ये पार्ट आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, बस आपको ये दिखता है। करेक्ट? यस और नो? Is this bytecode somehow portable? Means बिल्कुल बिल्कुल, दिस बाइट कोड इज पोर्टेबल। बिकॉज होता क्या है देखो,
बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, करेक्ट यस और नो? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। मान लो दिस इज लैपटॉप नंबर 1, ठीक है, लैपटॉप नंबर 1, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है तुम्हारा एप्पल वाला, क्या बोलते हैं, कौन सा हो गया ओएस, मैक, करेक्ट। उसके बाद होता है तुम्हारा दूसरा लैपटॉप जो है वो क्या है, दूसरा लैपटॉप इज योर विंडोज। और उसके बाद फिर एक और लैपटॉप है तुम्हारे पास, एंड योर थर्ड लैपटॉप व्हाट इट इज, दिस इज अ लाइनेक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास विंडोज है ना, यस और नो, करेक्ट। तो ये बाइट कोड, actually we also say that python is portable, maybe we can see it in the next points। तो python is portable जो बोलते हैं, तो ये बाइट कोड है ना, बाइट कोड भी can be run on any system, बाइट कोड can be run on any system। और ये सिस्टम में क्या होना चाहिए, हर सिस्टम के अंदर क्या होता है, वर्चुअल मशीन। तो याद रखोगे, इट इज दिस वर्चुअल मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग आवर बाइट कोड, अंडरस्टूड? Is there any particular name for this virtual machine? As like in Java, it was JVM. So in Python, we call it virtual machine only. It is just Python's own virtual machine. That's it. Okay. So yeah, this was all about कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। So did you people understand? क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो फेवरेट क्वेश्चन क्या है, why is Python called, या is Python a interpreted language? So आंसर क्या होगा? So you don't have to just say only in one word, yes or no नहीं बोलना है, ठीक है। You have to explain the thing। तो explain कैसे करोगे? The source code is compiled into byte code, ठीक है। और ये जो byte code होता है, then this byte code is run by the virtual machine using just-in-time compiler to produce the output. Understood? Just-in-time interpreter. ठीक है, just-in-time interpreter to produce the output. ठीक है। तो देखो मैंने कहा था दो चीज होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे कौन यूज होता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो याद रखोगे वर्चुअल मशीन वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर एंड नॉट द कंपाइलेशन पार्ट टू कन्वर्ट टू बाइट कोड। अंडरस्टूड? ठीक है। अब आओ, अब इसके बाद बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो मेरे डायग्राम में मैंने बताया ना, मैक में भी चलता है, विंडोज में भी चलता है, लाइनेक्स में भी चलता है, पता है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर विंडोज में कोड लिखे हो तो वो मैक में नहीं चलेगा, ठीक है, मैक में लिखे हो तो लाइनेक्स में नहीं चलेगा। यू जस्ट नीड टू हैव वर्चुअल मशीन इन दैट, राइट, यस और नो? करेक्ट। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो? Where we don't have to pay for that. Correct. You don't have to pay a single rupee to use that software, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब होता है कि आप उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हो ना। हाँ। नहीं होता है तो YouTube जिंदाबाद है कि नहीं, उसमें मिल जाता है कैसे करना है फ्री में डाउनलोड, ठीक है। चलो, तो वी हैव दोज थिंग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। चलो, तो अब आते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऐसा दूसरे लैंग्वेज की तरह क्वेश्चन नहीं होता है कि व्हाई इज पाइथन कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी बस ये याद रखो एक सिंपल सा लाइन कि क्यों है पाइथन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन लगना कि एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव बिकॉज काफी चीज इसमें है जो हम लोग इंटरैक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इजी टू मेंटेन डेफिनेटली है बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक्सटेंसिबल फीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पाइथन। एक्सटेंसिबल फीचर का मतलब क्या होता है पता है, कि मतलब किसी भी फंक्शनैलिटी को ना हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तुमको पता है पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है? आजकल बहुत फेमस चीजें हैं आईटी में। डेटा साइंस का नाम सुने हो? यस। डेटा साइंस बहुत इजी हो जाता है पाइथन से। डेटा एनालिटिक्स का नाम सुने हो? हाँ। डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा जो अभी वर्ल्ड आने वाला है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी पाइथन, ठीक है। क्योंकि पाइथन आपको अलग अलग चीज लाके प्रोवाइड करता है कि आप एक एक चीज कर सकते हो पाइथन से। यू डोंट नीड अ डिफरेंट टूल। अगर आपको मान लो कि कोई डेटा का ग्राफ बनाना है, यू कैन यूज पाइथन्स मॉड्यूल, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है।
और इसको हाई लेवल क्यों बोलते हैं? हाई लेवल मतलब ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजर अंडरस्टैंडेबल होता है, एंड ये क्या है, इजी टू राइट ऑल्सो। मतलब कोई भी बिगिनर होता है ना, इट इज देयर फेवरेट गो टू लैंग्वेज, मतलब इससे वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर है देखो ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज बेसिकली जो आपको डेटा साइंस के भी चीज को इस्तेमाल करने देगा, जो आपको एनालिटिक्स का भी करने देगा, आपको विजुअलाइजेशन का भी करने देगा, आपको मतलब हर एक चीज, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, बट यस वी आर गोइंग टू लुक एट थिंग्स। और डायनामिक टाइप्ड, दिस इज सर अनदर। ये सर हेलो सर, एक्सक्यूज या सॉरी गो अहेड। सर, ये वर्ड लाइब्रेरी यूज होती है हर सॉफ्टवेयर में, इसका मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी क्या डिफाइन करती है? ओके, व्हाट इज द लाइब्रेरी बेसिकली? सो लाइब्रेरी की बात करते हैं, क्या होता है। अभी आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, राइट? अभी जैसे आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, करेक्ट? I would यस just सर। request to go on mute, please. If you have anything, you can just come up and say. Okay, so there's some disturbance. If others can put person. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लाइब्रेरी में क्या होता है। लाइब्रेरी होता क्या, ऐसे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे लाइब्रेरी को? लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे आपका जो बुक्स है वो स्टोर्ड होते हैं, राइट? यस ऑन करेक्ट? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज। या यस सर। जहाँ पे बुक्स स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब यही होता है। लाइब्रेरी मतलब समझ लो एक ऐसे करके ना, एक जैसे कमरा होता है ना, तो वैसे ही करके ये एक डब्बा है, ठीक है, और कुछ नहीं है नॉर्मल टर्म्स में। ये एक बॉक्स है, डब्बा है, और डब्बे के अंदर क्या है, अलग अलग पड़ी हुई है बुक्स इसके अंदर, ठीक है। बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं बोलेंगे बेसिकली, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अलग अलग क्लासेस पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लासेस है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है, अभी आपको कुछ भी किसी भी बुक की जरूरत होती है तो आप कहाँ जाओगे? यू विल गो टू द लाइब्रेरी, राइट? जाओगे ना? यस सर। ओके, सो यू विल गो टू दी लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी, मान लो लाइब्रेरी का नाम है, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, जैसे मान लेते हैं अभी रीग्रो का अपना तो लाइब्रेरी है नहीं, बट स्टिल अंडरस्टैंड इट दिस वे कि ये रीग्रो का लाइब्रेरी है, ठीक है। और तुमको पता है कि रीग्रो के लाइब्रेरी में यहाँ पे एक ऐसा बुक रखा हुआ है जिसको हम यूज करेंगे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू? तो आप जाते हो एक लाइब्रेरी के अंदर जहां पे होता है रीग्रो, ठीक है। रीग्रो का लाइब्रेरी है ये। तो रीग्रो के अंदर जाओगे, रीग्रो के अंदर ये रीग्रो का मान लो लाइब्रेरी है, दिस इज द पैकेज बोलो या लाइब्रेरी बोलो, सेम थिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला चीज है जो आपके काम को आसान कर देगा, तो यू विल गेट दिस थिंग एंड स्टार्ट यूजिंग इट, राइट? यस और नो? यही यस करोगे सर। ना? तो यस। बस यही है, बिल्कुल लाइब्रेरी यही होता है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज बेसिकली अ पैकेज, एक पैकेज है जिसके अंदर अलग अलग क्लासेस रखे हुए हैं, विच इज प्री डिफाइंड, जो पहले से बना है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ बुक, और बुक तो पहले से लिखा हुआ है, लिखा है ना, हाँ कि ना? यस सर। करेक्ट। सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन, बस आप इसको यूज करके कर लो उसका काम, तो वही आपको लाके दे देता है। तो वेन एवर यू नो कि जैसे हम लोग क्या है, देखिए, अगर इफ एनीबडी हैज एक्चुअली वर्कड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं, मैथ डॉट, अगर हम लोग पावर निकालना है तो मैथ डॉट पाव लिखते हैं, देखिए वो यस। ऐसा कुछ। तो मैथ डॉट पाव, और ये क्या है पता है तुमको? मैथ नाम का एक क्लास है, ठीक है, मैथ नाम का ये बुक है, उसके अंदर एक पाव करके एक चैप्टर है, उसके अंदर तुमको बोला कि ये दो चीज पास करो, हम तुमको इसका पावर लाके दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज मेकिंग आवर वर्क इजी, राइट? इजंट इट? इजंट इट? यस। यस और नो? तो दिस यस इज सर। केप्ट, दिस इज केप्ट इनसाइड अ लाइब्रेरी। अगर कोई जावा पढ़ा है तो दे मस्ट बी नोइंग कि जावा डॉट लैंग एक हमारा लाइब्रेरी था, अगर किसी ने पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर बेसिकली नथिंग बट दीज आर पैकेजेस। ये क्या होते हैं? दीज आर पैकेजेस, और पैकेजेस जो है ये हम लोग को हेल्प करते हैं हमारे काम को आसान बनाने में। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। यस। ओके, सो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हम लोग को ऐसी लाइब्रेरीज ला के देता है पाइथन, जिसको हम लोग यूज करके ना हम लोग बहुत इजी तरीके से डेटा साइंस को अचीव कर सकते हैं। हम लोग मशीन लर्निंग का बना सकते हैं, हम लोग एआई का एल्गोरिदम्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। इफ आई जस्ट गो ऑन टू शो यू द एप्लीकेशन, तो आई जस्ट शो यू कि आप एप्लीकेशन देखो पाइथन का कहाँ कहाँ पे है। आई जस्ट ब्राउज एंड शो इट टू यू कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन है कहाँ, ठीक है। तो पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। देखो मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई जस्ट सिंपली गो टू द इमेजेस, और यहाँ पे देखते हैं कि पाइथन का एक्चुअल कहाँ कहाँ पे है। देखो, तो ये देखो एक छोटा सा ये दिखेगा आप, ये आपको, ठीक है। तो देखो हम लोग इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं,
ठीक है, डेस्कटॉप का एप्लीकेशन बना सकते हैं, इससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, नेटवर्किंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, 3D ग्राफिक्स कर सकते हैं। चलो आओ और देखा जाए और क्या है। चलाओ यहाँ पे टॉप 10 एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो ऑडियो विजुअल, देखो इमेज प्रोसेसिंग। आजकल जो देख रहे हो ना कि तुम्हारा जो मेटा आ रहा है, देख रहे हो आजकल अवतार बनाते हो, अपना बनाते हो ना, तो वो सब बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो पाइथन से, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप जीयूआई, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कर सकते हो, बिजनेस एप्लीकेशन। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद पाइथन। ठीक है, तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है विच इज नाउ गोइंग टू बूम इन द मार्केट वेरी मच। तो पाइथन सीखना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, चलो तो अब आते हैं वापस से कि नाउ पाइथन इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंप्लीट लिस्ट। पहला इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? Who will tell me? पहला क्या था सबसे इंपॉर्टेंट? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और नॉट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो जब ये पूछा जाता है तो वी आर नॉट गोइंग टू से सिंगल वर्ड में आंसर यस और नो नहीं बोलेंगे। इंस्टेड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सोर्स कोड इज फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड एंड दिस बाइट कोड यूजिंग द वर्चुअल मशीन, क्या बोलेंगे, यूजिंग द वर्चुअल मशीन्स JIT इंटरप्रेटर। ठीक है, जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर गिव्स द आउटपुट। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे। तो ये इंटरप्रेटर वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर एंड नॉट ए कंपाइल्ड। सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं देना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हमारा डायनामिकली टाइप्ड क्यों बोलते हैं। दिस इज अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर्स आस्क। ठीक है, तो कैन एनीबॉडी टेल मी और एनीथिंग दैट यू पीपल अंडरस्टैंड कि डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है? It's a type of variable Data that is keeps on changing. determined only Regular during at runtime. regular interval. Sorry, who was saying interval one? I was saying data keeps on changing at regular interval. Data dynamic keeps data on changing. Okay, changing. चलो अच्छा, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं किसी दूसरे चीज से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं पाइथन पे। तो दूसरा लैंग्वेज क्या बोलता है पता है? दूसरा लैंग्वेज बोलता है अगर मैंने बॉटल बनाया है, ठीक है, मैंने अगर एक बॉटल बनाया है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बनाया है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ भी, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग तो प्लीज मैनेज। ठीक है, मैंने एक ऐसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बनाया है, एकदम बढ़िया से लिखा है कोका कोला। ठीक है, चलो ये पीछे छुप गया, तो ये कोका कोला लिखा है। तो दूसरे लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं ना, अगर मैंने इसको कोका कोला के लिए बनाया है तो यू आर गोइंग टू ओनली यूज इट फॉर कोका कोला। करेक्ट, यस और नो? अरे Okay. ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि ऐसा बोला गया है कि दूसरे लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं कि मैंने जो कंटेनर बनाया है ना, विच एवर कंटेनर आई हैव क्रिएटेड दैट विल स्टोर फॉर वट एवर आइटम आई हैव क्रिएटेड इट फॉर। अंडरस्टूड? ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, पाइथन क्या बोलता है? पाइथन बोलता है कोई बात नहीं, कोका कोला बनाया ना, कोका कोला खत्म होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? बॉटल का पानी भर भर के रख लेते हैं, रखते हैं ना, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तुम अभी कोका कोला रखो, अगले बार पानी रखो, उसके बाद फिर थोड़ा दिन हो जाए तो इसमें रसना डाल के रख लेना। ठीक है, समझ गए? So तो यहाँ Faizan, if I am not wrong, what I am getting is, suppose I am having a variable that has a data type as a string, right? Then after that, that same variable, suppose I am having string A, right? So after in Python, I can change that into int A. Is it like Correct. something like that that you were means trying to make us understand? करेक्ट। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इट इज सेइंग कि यहाँ पे पाइथन बोलता है आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द कंटेनर। तुम मेरे में डाल के केक बनाओ, तुम मेरे में डाल के जो बनाना बनाओ, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, मैथ्स में ऐसे लिखते थे हम लोग, a = 10 लिखते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? पढ़े हो ना? अरे यार इतना तो सब करता है, x + y = 20, ऐसा वाला पढ़े हो ना एक्सप्रेशन, x - y = 10। फिर बैठ के ऐसे सॉल्व करते हैं, y काट देते हैं और इधर हो गया 2x = और इधर 30 और x = 15, ऐसे निकालते थे ना? हाँ कि ना? करेक्ट। करते हैं ना? तो ये सेम चीज देखो, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, a = 10 लिख सकते हैं ना? हाँ कि ना? लिख दिए। तो ये क्या बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे इसको आगे मत बताओ कि कौन सा टाइप का है,
पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में ये बताना पड़ता है, ठीक है। तो पाइथन बोलता है मुझे बताओ मत, ठीक है, कि किस टाइप का तुम डेटा दे रहे हो, मैं खुद से समझ लूंगा एट द रन टाइम। कब समझूंगा? रन टाइम। रन टाइम में मैं खुद से समझ लूंगा कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पाइथन को कुछ बताना नहीं है। अगर आपको a इक्वल टू 10 करना है ना तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर a इक्वल टू अगर आपको लिखना है निशी तो वो भी आप कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे मैंने वर्ड एक रख दिया है, वर्ड रखा ना, वर्ड रखा, और ये मेरा कंटेनर है, करेक्ट। तो मैं इसमें वर्ड रखूं या नंबर रखूं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है उसको। तो बोलता है कि तुम हमको बताओ मत, मैं अपने आप समझ लूंगा कि उसके अंदर तुम क्या रख रहे हो, अंडरस्टूड। इज इट क्लियर, यस और नो? So we need not to declare the data type for the variable that we are using. Need to declare, it will automatically be understood by the Python interpreter at the runtime, understood, yes or no? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथन इज डायनामिक टाइप, ठीक है। डायनामिक टाइप क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, पाइथन डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इवन इफ वी डोंट डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। हम लोग अगर टाइप नहीं बताते वेरिएबल का कि भाई इसमें नंबर रखना है, इसमें आपको मतलब क्या बोलते हैं कि आप नंबर नहीं बोलेंगे, बेसिकली इंटीजर रखना है, या अगर आपको उसके अंदर पॉइंट वाला नंबर रखना है, या अगर आपको नेगेटिव नंबर रखना है, या आपको उसके अंदर वर्ड रखना है, या आप उसके अंदर कैरेक्टर रखना चाहते हो, तो पाइथन बोलता है हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस डाल दो, हम ऑटोमेटिकली जब रन करेंगे उस टाइम मैं समझ लूंगा इसको, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें हम लोग का GUI सपोर्ट। GUI, हाउ मेनी ऑफ यू नो GUI क्या होता है? Graphical user interface, like Correct. the one in Skype we are using right now. करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का GUI सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली GUI सपोर्ट क्यों होता है और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद एक होता है डेटाबेसेस सपोर्ट। तो ये क्या है ना, ये सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है। डेटाबेस जानते हो क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? हाँ, वो जैसे SQL ये सब डेटाबेसेस है, राइट? करेक्ट, SQL वगैरह डेटाबेसेस। पुष्पेंद्र, डू यू नो व्हाट इज अ डेटाबेस? Yes sir, yes sir, I know. Okay, Sabha, you asking something? Okay. No, I'm not. Okay, Afsha, do you know what is a database? Side. Yes, yes, I know. पेंटर का जुगाड़ हो गया. Okay. Okay, so if everybody is aware what is a database, तो मैं बस ब्रीफ बता दूं कि जैसे कभी भी होता है ना, हम लोग को डेटा अगर कहीं रखना होता है, ठीक है, वो इंटरनेट में नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेटाबेस के अंदर रखते हैं, और डेटाबेस को हम लोग अपने सर्वर पे रखते हैं, और बाद में हमारा सर्वर से बातचीत होता है और डेटा आना जाना होते रहता है, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली। और डेटाबेस कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे निशी ने एग्जाम्पल दिया था, MySQL होता है, उसके बाद फिर हमारा होता है Mongo, ठीक है, और होता है PostgreSQL। तो बहुत सारे हैं हमारे, जिसमें से एक हम लोग पढ़ेंगे जो MySQL है, वो हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। So moving on, since everything is clear here, so most two important things that we needed to understand over here is Python is an interpreted language है कि नहीं है, उस पर बात होगी। तो याद रखो, Python is an interpreted language, but you have to not explain only with a single word, you have to explain it properly. और दूसरा है why is Python called a dynamic typed language? Dynamic typed क्यों बोलते हैं? क्योंकि we don't need to specify the data type. Specify करना है data type आपको, बताओ? नहीं, नहीं No, करना not है, will right? specify during the runtime. Correct. It will automatically specify during the runtime. ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ एट ऑल somebody ask you what is Python, तो उसको बताने के लिए है कि पाइथन क्या होता है। तो पाइथन इज easy to learn and understand. It is an expressive language, interpreted language, it is dynamically typed, ठीक है, it is free and open source. तो कोई भी 4 पॉइंट बोल सकते हो, बिल्कुल more than enough है, ठीक है। You don't need to go much into depth. अब आ जाओ नेक्स्ट। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था, आई जस्ट ब्रीफ यू कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ प्रॉपरली पुट इन कोड, बट दिस इज जस्ट अ हाई लेवल व्यू ऑफ हाउ थिंग्स हैपन ओवर हियर। बट द वन दैट आई एक्सप्लेन दैट वाज अ प्रॉपर वन, जिसमें मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ पे क्या होता है सिस्टम। यहाँ होता है कि सोर्स कोड इज फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, और बाइट कोड का टाइप क्या होता है, .pyc। क्या बोलते हैं?
.pyc, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, देन इट गोज इनटू द वर्चुअल मशीन। पाइथन का वर्चुअल मशीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ जाता है और इसके अंदर कौन होता है, JIT। और JIT इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेट करके हमको आउटपुट देता है। इंटरप्रेट मतलब एक एक लाइन को रीड करता है, ठीक है। क्या करता है, एक एक लाइन बाइट कोड का कन्वर्ट करके हमको रीड करके आउटपुट देता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हम लोग आते हैं आज के सबसे फेवरेट पार्ट में हम लोग का, ठीक है। लेट्स राइट आवर फर्स्ट पाइथन कोड, ठीक है। तो चलो आओ, तुम लोग बेसिकली ये कोड लिख चुके हो, बट स्टिल लेट मी जस्ट वेलकम यू ऑल टू आवर पाइथन कोडिंग सेशन। तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं, वी हैव अराउंड 15 मिनट्स लेफ्ट, तो हम लोग उसमें पाइथन के कुछ कोड्स करते हैं एंड वी विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू द कैप्सूल सो दैट यू आर अप टू डेट विद पाइथन। चलो, so before coming here आपको अपना PyCharm खोलना है। you all have PyCharm installed, right? yes or no? PyCharm installed है सबके? yes। चलो, तो PyCharm पे आना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बेसिकली मैं आपको दिखा दूं किया क्या जाता है। आप आओगे यहाँ पे, आपका जो भी फोल्डर का नाम है ना, आपका जो भी फोल्डर का नाम है यहाँ ओपन पे आओ, ठीक है। ओपन पे आओ और ओपन करने के बाद आपका जो भी फोल्डर का नाम है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा देखो डी ड्राइव में है, डी ड्राइव है। डी ड्राइव के बाद मैं आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो ये देखो मैं पाइथन वर्कस्पेस करके बना के रखा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट एंड आई एम डूइंग ओके, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आई जस्ट लेट इट ओपन इन द करंट विंडो। तो ये देखो ओपन हो गया, देखो दिख रहा है पाइथन वर्कस्पेस WS लिखा है। यस। एंड इफ यू पीपल वांट टू सी कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, चलो मैं चल के दिखा दूं आपको। तो आई जस्ट गो टू द डी ड्राइव, मेरा डी ड्राइव कहाँ है, चलो दिस PC एंड आई जस्ट गो टू माय डी ड्राइव। और डी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो वी हैव पाइथन वर्कस्पेस। सो डू यू सी एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस .idea फाइल? नो, नहीं। और ये .idea फाइल ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप इसको PyCharm में जब आप इसको ओपन करते हो। अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है। चलो, तो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू राइट योर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा ये बार बताओ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोल रहा था, ठीक है। आई वाज जस्ट सेइंग वन थिंग कि यहाँ पे आपको GUI सपोर्ट मिलता है, ठीक है। GUI सपोर्ट। सो डू यू नो कि अगर हम लोग पाइथन का कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडोज पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आना है रन करने पे, ठीक है। तो आई जस्ट कम हियर और यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ, CMD, ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू जस्ट वांट टू राइट पाइथन कोड, अगर आपके पास PyCharm नहीं है मान लो, तो इफ यू वांट टू राइट पाइथन कोड तो आप यहाँ से पाइथन लिख सकते हो, इस तरह से पाइथन। अब देखना इसका लुक चेंज हो जाएगा, देखो ये पाइथन की तरह आ गया, लिख के आ गया ना। तो पाइथन कोड आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे भी आप पाइथन कोड लिख सकते हो। तो ये हम लोग को GUI सपोर्ट नहीं देता है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको अलग से फिर उसको लिखना होगा, फिर वो आपका रन होगा और आउटपुट देगा, बट दैट डजंट लुक गुड, राइट। और जब तक कुछ हम लोग को अच्छा दिखे नहीं, मजा आता है क्या? नो, मजा नहीं आता है, करेक्ट। चाहे वो खाना हो चाहे वो कपड़ा हो, करेक्ट। जब तक अच्छा नहीं लगे तब तक हम लोग उसको नहीं यूज करना पसंद करते हैं। तो लेट्स कम आउट फ्रॉम देयर एंड यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। आ जाओ PyCharm में। तो PyCharm में आपको कुछ नहीं करना है। हियर इफ यू कम, आपको आना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और न्यू पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपना बना लो पाइथन फाइल, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे आके न्यू में जाओगे और न्यू में जाने के बाद पाइथन फाइल। अंडरस्टूड? और इस फाइल का नाम आपको जो देना है दे दो। मैं दे रहा हूँ इसका नाम चलो day 1 नाम दे देता हूँ, day 1, ठीक है। और ये कर दिया ओके। तो देखोगे अगर तुम लोग, तो हम लोग का पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन? .py। ये पाइथन का शॉर्ट फॉर्म है .py। अंडरस्टूड? यस और नो एवरीवन? यस। यस सर। ओके, नाउ कमिंग कि अगर मुझे मान लो यहाँ पे आप लोग सबके लिए एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, ठीक है। मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जांपल है, बेसिकली मैं सबको देता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जैसे मान लो आप लोग ATM पे जाते हो ना, ATM पे गए हो या नहीं? गए हो ना? तो यू सी समथिंग, सम मैसेज रिटन ऑन दैट स्क्रीन, राइट? यस और नो? देखते हो कुछ मैसेज लिखा होता है, कुछ भी होता है यार, वेलकम टू SBI या वेलकम टू एक्सिस बैंक, जिसका भी ATM है आपका उसका लिखा रहता है, या फिर कुछ ऐड वैड चलते रहते, करेक्ट? ठीक है।
तो ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि वो जो मैसेज आपको दिखता है ना, दैट इज बेसिकली आप वहां दिखा सकते हो। तो हाउ विल यू शो योर आउटपुट, आप अपने आउटपुट को कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए आपको पाइथन में कुछ नहीं बोलना है। पाइथन में क्या बोलना है? पाइथन को बोलो भाई साहब क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या बोलना है पाइथन को? प्रिंट। प्रिंट करने बोलना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधा यहाँ पे लिखो PRINT प्रिंट, ठीक है? और 2 गोल गोल ब्रैकेट लगा दो। लगा दिया? लगा दिया ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ। लगा दिया। अब प्रिंट के अंदर अगर तुमको कुछ ही मैसेज लिखना है ना, तो हम लोग जनरली जो भी हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग क्या नहीं बोलेंगे, जैसे बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ठीक है? जैसे मान लो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ले रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया हूँ। लेट मी जस्ट जूम दिस अ लिटिल, अगर हो जाता है तो। Let me just check if I can zoom in. Okay, I'm not able to zoom in right now. Okay, चलो कोई नहीं। तो मैं आपको प्रिंट लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई जस्ट वेलकम यू ऑल, वेलकम टू रीग्रो टेक्स, ठीक है? वेलकम टू रीग्रो टेक्स, हाँ ये मजा आएगा, ठीक है? चलो अभी रीग्रो टेक लिखता हूँ, वेलकम टू रीग्रो टेक, ठीक है? Fazan, can you please change the scheme of the Python to any light Okay. scheme? Then it will be. Is it difficult for you people to follow? Yes, actually. Okay. So let me just try to edit the scheme. You will find it in the files, under files. Settings. Things. Let me just check in here. Then we have appearances. Okay, I'll just check this one, normal one. Okay, apply. Okay, still I don't think this is a better one. ऐसे दिख रहा है क्या? I'll just try to change it. Maybe in the next class we can just change it. Okay. So right now I've just written print, and then I've inside single inverted commas I've written welcome to Regrowtech. Understood? Yes or no? ठीक है? Now how you are going to run this file? ठीक है? तो रन करने के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है? देखो रन डे 1 आ रहा है, ठीक है? तो यू कैन सिंपली गो एंड रन ओवर हियर, रन डे 1। तो यहाँ पे देखोगे वॉट एवर मैसेज वी आर रिटर्न ओवर हियर, ये आ गया ना? हाँ कि ना? हाँ आ गया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ आर पाइथन। तो पाइथन में हम लोगों ने क्या किया? तो अभी आपको इसमें जो भी लिखोगे ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे, जैसे मान लो इफ आई जस्ट वांट टू वेलकम, ये तो कर दिया मैंने, ठीक है? मैं मान लो किसी का नाम लिख रहा हूँ, निशी इज प्रेजेंट टुडे। इफ आई जस्ट हैव टू राइट इट दिस वे, निशी इज प्रेजेंट टुडे। और कौन कौन है? अफशा इज प्रेजेंट टुडे, अफशा एंड पुष्पेंद्र इज ऑल्सो इन क्लास। सो देखो मैंने जो मैसेज लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? जो भी लिखा है मैंने, ठीक है? वो देखो आ गया। देखो यहाँ पे, यहाँ से भी रन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? देखो मैं रन कर दिखाता हूँ आपको। देखो आ गया वो मैसेज, ये सुनो, Yes. निशी इज प्रेजेंट, अफशा एंड पुष्पा इज ऑल्सो इन क्लास, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस। Yes. इजी। पाइथन को बोला प्रिंट कर दो, पाइथन ने कर दिया। लेकिन सिर्फ पाइथन को देने से पहले हम लोग क्या याद रखना है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। किस में रखना है? Single inverted comma. लेकिन पाइथन बोलता है कोई बात नहीं, सिंगल और डबल में भी तुमको हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बोला सिंगल की जगह डबल दे दो, पाइथन बोलता कोई बात नहीं डबल दे दो, ठीक है? वो बोलता है मेरे लिए सिंगल और डबल दोनों बराबर है। तो देखो मैं इस बार डबल दे रहा हूँ और इस बार लिख रहा हूँ प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत इज इन क्लास, ठीक है? मैं लिख दिया। तो सिंगल लिखो चाहे डबल लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, वो सीधा चला देता है। तो देखो यहाँ आ गया प्रसन्नजीत इज इन क्लास। यस और नो? करेक्ट? Yes. करेक्ट। Now what if I want you people to write a program for me? What if I want you people to write a program for me where it is written as कि Faizan in double quotes is the instructor.
हाउ विल यू प्रिंट दिस मैसेज? अगर ये आपको मैं कहता हूं कि भाई जाओ और ये मुझे दिखाओ आपके एटीएम के स्क्रीन पे, तो कैसे दिखाओगे? पाइथन में क्या बोलोगे? लेकिन फैजान मेरा डबल कोट्स में आना चाहिए। फैजान किस में आना चाहिए? डबल कोट्स। डबल कोट्स में। तो बताओ कैसे करोगे? स्किप सीक्वेंस है इसमें? सेम प्रिंट करेंगे और उसमें न्यू लाइन का एक दे के कर सकते हैं जिसमें नीचे रहेगा इज अ इंस्ट्रक्ट। अच्छा कैसे करेंगे? कम ऑन, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, फैजान इज द इंस्ट्रक्टर, राइट? यस और नो? करेक्ट लिख सकते हैं ना? हाँ कि ना? हाँ। निशी, यस। तो ये अगर मैं करूंगा ये तो सिर्फ फैजान, देखो कैसे आएगा, ये तो ऐसे आएगा सिर्फ फैजान इज द इंस्ट्रक्टर, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? फैजान डबल कोट्स में चाहिए था। कैसे होगा? हु कैन हेल्प मी आउट? यार पाइथन सिंपल टर्म्स में बोला है कि मैं सिंगल इन्वर्टेड को भी लेता हूँ, डबल इन्वर्टेड को भी लेता हूँ। तो सिंगल इन्वर्टेड से अपने मैसेज को डालो और सिंगल इन्वर्टेड से बंद करो, और बीच में फैजान को ऐसे ही रहने दो। अब इसको प्रिंट करो, देखो क्या होगा। आ गया फैजान डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ओके। अरे पाइथन बोलता है ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को तुम यूज कर सकते हो। तो अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट हम सिंगल इन्वर्टेड दिए हैं तो उसको क्लोजिंग पॉइंट में क्या चाहिए? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और बीच में तुम जैसे दे दो, राइट? यस और नो? तो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं सोचना है, यू कैन सिंपली गो अहेड एंड गिव इट। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। क्लियर है? देखो होता क्या है मैं फिर से बता दूं, ठीक है? अभी देखो आप लोग यहाँ लिखते हो प्रिंट, PRINT, प्रिंट लिख दिए। पाइथन बोलता है या तो सिंगल दोगे तो क्लोज भी सिंगल से करो, ठीक है? और इसके बीच में तुमको डबल यूज करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर तुम स्टार्ट सिंगल से किए हो तो क्लोज भी किसे करोगे? सिंगल। सिंगल से, ठीक है? अब इसके बीच में तुम ऐसे लिख दो ना, डबल इन्वर्टेड में फैजान लिख दो, तो क्या ये डबल इन्वर्टेड सिंगल वाले के साथ समझेगा क्या? नहीं ना, ये तो इसका नहीं समझेगा ना। तो बस हो गया काम खत्म। तो वही मैंने किया है। देखो पाइथन में इजी है प्रिंट करना, यस और नो? यस। यस यस। करेक्ट, इजी, ठीक है? बट व्हाट इफ, ठीक है, जब हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा और सीखा जाए, ठीक है? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि नहीं, यू हैव टू यूज, प्रिंट करो, डेफिनेटली प्रिंट करो, और ये लिखो फैजान्स लैपटॉप। थोड़ा सा तुम लोग के लिए क्लियर करो, ये सिंगल इन्वर्टेड में रहेगा, ये भी सिंगल इन्वर्टेड में रहेगा, ठीक है? हाउ कैन यू राइट दिस? ये स्टार्टिंग में सिंगल इन्वर्टेड है, क्लोजिंग में सिंगल इन्वर्टेड, और बीच में भी सिंगल इन्वर्टेड है। हाउ कैन यू राइट दिस? ये कैसे लिखेंगे? सोचो एक बार। तो we have a concept in Python sequence called as escape sequence। क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। escape sequence क्या बोलते हैं अफशा? क्या बोलते हैं शारिक? एस्केप सीक्वेंस। escape sequence। तो escape sequence वर्ड सुन के क्या लग रहा है? what do you understand by this word escape sequence? क्या लग रहा है सुन के बताओ? escape sequence कुछ नहीं है, वो एक सीक्वेंस को escape कर रहा है। escape मतलब क्या होता है? हाँ, escape मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश में होता है कि यार उस सीक्वेंस से यू आर ब्रेकिंग आउट एंड रनिंग अवे, राइट? यस और नो? escape का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि देखो होता क्या ये समझते हैं हम लोग पहले, ठीक है? कि अगर हम लोग यहाँ पे ये करते, अगर ये वाला सिंगल इन्वर्टेड है, इसको ये भी सिंगल इन्वर्टेड मिलता, तो ये क्या, ये इसको ओपनिंग समझता और इसको क्लोजिंग समझता, यस और नो? yes एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये तो बाहर हो गए मैसेज के, हाँ करेक्ट? तो नहीं, हमको तो ये रखना था। व्हाट आई वांटेड टू टेल पाइथन इज कि भाई ये आपका है, बीच वाला आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, राइट? यस और नो? बताना है ना? हाँ। बताना है।
तो जो आपको बोलना है कि पाइथन भाई ये आपका नहीं है, ठीक है, तो उसके आगे कुछ नहीं करना है, उसके आगे आपको क्या लगाना है, उसके आगे आपको बैक स्लैश लगाना है। क्या लगाना है? बैक स्लैश। तो ये सेम मैसेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फैजान, बैकस्लैश। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बैक स्लैश यहां पे लगाएंगे, पहले लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला जो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है वो पाइथन उसको अपना नहीं समझे। अंडरस्टूड? ओके। अब पाइथन उसको अपना नहीं समझेगा। अब ये हो गया फैजान्स और यहाँ लिखो लैपटॉप। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये आएगा, ये बोलेगा ठीक है, ये पाइथन बोलेगा ये मेरा अपना स्टार्टिंग वाला है। फिर इसके पास आएगा लेकिन बोलेगा भाई तुमसे पहले तो ये है, तो हम तुमको नहीं ले सकते अपना। तो बाद में पाइथन फिर आगे जाता है जाता है जाता है, फिर देखता है ये है, तो बोलता है ठीक है ये मेरा है। कि उसके आगे है क्या बैक स्लैश? नहीं। नो। नहीं है, तो बैक स्लैश नहीं, तो पाइथन बोलता है ये मेरा है। तो ये इसको स्टार्टिंग मान लेता है, ये इसको क्लोजिंग मान लेता है उसका। अंडरस्टूड? और बीच वाले को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है बीच वाले को? क्योंकि उसके आगे क्या है, एस्केप सीक्वेंस। बैक स्लैश है। और बैक स्लैश हम लोग लगाने से क्या होता है, दैट escapes द सीक्वेंस। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। तो चलो, तो अब सेम चीज को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ऊपर तो प्रिंट हो रहा है, उसको होने दो, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लाइन में आके फिर से एक बार प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड में ही लिख रहे। देखो सिंगल इन्वर्टेड लिखा मैंने, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर लिखेंगे क्या, फैजान, फैजान, ठीक है। और ये अपोस्ट्रोफी एस। देखो अभी देखो क्या हुआ, देखो वो ब्लू है बाकी व्हाइट हो गया। यस और नो? देखो दिख रहा है। हाँ। लेकिन क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या समझ रहा है वो, ये सिंगल इन्वर्टेड को क्या समझ रहा है बताओ? ये क्या End. सोचा कि दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग, राइट। तो ये इसको तो मैसेज समझ लिया, क्यों? जिसको मैसेज समझता है देखो उसको ब्लू ब्लू रख रहा है, करेक्ट। और जिसको मैसेज नहीं समझ रहा है वो तो दिक्कत हो गया। तो आई हैव टू टेल पाइथन कि भाई पाइथन की ये वाला तुम्हारा स्टार्टिंग है, आई एक्सेप्ट इट, बट ये तुम्हारा क्लोजिंग नहीं है, तुम्हारा क्लोजिंग ये है। तो जो क्लोजिंग है तुम उसको लो। तो अगर हमको बोलना ये तुम्हारा नहीं है तो हम इसके आगे क्या करेंगे, व्हाट विल आई पुट, Backslash. बैक स्लैश। आई जस्ट पुट अ बैक स्लैश। देखो सब ब्लू हो गया, हो गया, यस और नो? चलो अब हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, नाउ वी हैव दिस एज फैजान्स लैपटॉप, सिंगल इन्वर्टेड के साथ किया हम लोग, है कि नहीं? सिमिलरली वी कैन डू दिस ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन डू फॉर दिस ऑल्सो, डबल इन्वर्टेड के साथ डबल इन्वर्टेड का, राइट, यस और नो? देखो ये डबल इन्वर्टेड खोले तो ये डबल इन्वर्टेड, ये डबल इन्वर्टेड अपना हो गया, ये दोनों अपना समझ लिया, एंड रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इसको बाहर निकाल दिया ये लोग, ठीक है, सॉरी बाहर निकाल दिया। फिर ये डबल इन्वर्टेड और ये डबल इन्वर्टेड अपना समझ लेगा, करेक्ट, यस और नो? इसको तो बाहर निकाल दिया। तो वी हैव टू टेल कि भाई ये वाला आपका नहीं है, फैजान के आगे वाला उसका है क्या? नहीं। नहीं है ना, तो उसके आगे क्या लगा दोगे, बैक स्लैश। और एन के बाद वाला भी क्या पाइथन का ये? नहीं, तो इसके आगे भी बैक स्लैश लगा दो। और बाकी ये तो एंड वाला पाइथन का है, तो पाइथन के पास रहने दो, ये वाला तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, बाकी सब मेरा है। तो इसको चलाएंगे तो देखो लास्ट में क्या आएगा, रन एज, देखो लास्ट वाला भी आ रहा है, वैसे ही आ रहा है ना, यस और नो? यस। So this is called escape sequence in Python. Understood? Yes. तो हम लोग आज कुछ नहीं सीखे हैं, हम लोग बेसिकली पहला कोड सीखे हैं जहाँ पे हम लोग बस अपने नाम को प्रिंट करना सीखे हैं और हम लोग escape sequence लगाना सीखे हैं, करेक्ट, यस और नो? तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में पाइथन डिफरेंशिएट करता है क्या? नो, नहीं डिफरेंशिएट करता है। पाइथन बोलता है कि अगर आप वर्ड लिख रहे हो, अगर आप मैसेज लिख रहे हो, आप सिंगल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हो, बट देखो आदत अपनी डालो, ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो ना वो डालो। अगर डबल से कंफर्टेबल हो वो डालो, ताकि तुमको याद रहे कि जब तुम प्रोग्राम लिख रहे हो। क्योंकि डे वन में यही होता है, इंसान सोचता है दोनों तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिखने का मैंने तरीका बताया ना कि इफ यू जस्ट वांट टू अवॉइड एस्केप सीक्वेंस, तब वहां पे आपको दोनों तरीका है आपके पास, यस और नो? ठीक है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल लिख सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप एस्केप सीक्वेंस यूज करो। नाउ वन मोर थिंग, कमिंग टू वन मोर थिंग, ठीक है, एक और प्रिंट करने का तरीका सीखो। देखो प्रिंट, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इस बार हम कितना है, सिंगल इन्वर्टेड डालेंगे लेकिन 3 बार, 1 2 3, ठीक है, डाले 3। और इसके बाद हम मैसेज लिख लेते हैं, मैसेज लिख लेते हैं, अरशद एंड सैफ इज इन क्लास, हो गया।
फिर 1 2 3 बंद कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो इसको भी रन करने का तरीका आप लोगों को पता है, यहाँ पे यहाँ रन करो, या फिर ये फाइल में आके राइट क्लिक करके रन करो, या फिर इसी फाइल में आके राइट क्लिक करो और रन करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरशद सैफ इज इन क्लास, तीनों आ रहा है। तो कितना तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, 3 सिंगल इन्वर्टेड से खोलो, 3 सिंगल इन्वर्टेड से बंद करो। देखो दिख रहा है यहाँ पे 3 से मैंने खोला है और 3 से मैंने बंद किया, राइट, करेक्ट। हाँ, ये दूसरा तरीका है कि सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करो, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से खोलो और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करो। अंडरस्टूड, ठीक है। तो these are the 3 ways in which we can write a string. Understood? Yes or no? String क्या होता है पता है? String मतलब होता है कैरेक्टर से मिल के जो बनता है। कैरेक्टर क्या होता है? A कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर, यानी जितनी भी चीज है ना, अगर एक एक पकड़ोगे तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस। ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।